Okay, so it's almost 7 p.m. The participants will keep on increasing as the time increases. So we won't wait any further now. We will proceed with the webinar. So before I proceed with the webinar, let me introduce uh, myself to you all. My name is Utkarsh Srivastav, and I'm currently employed as a senior data science trainer here at Baroda Institute of Technology. I have done postgraduate program in artificial intelligence and machine learning from Great Lakes Institute of Management, Gurugram, and currently I am here training students. Basically, India needs a lot of data scientists to get trained, and currently, I'll only talk about India as of now. Not only India, but all over the world. Not only in India, but all over the world. There is a shortage of data scientists. But to fill that supply gap, basically, I became, with the aim of filling that supply gap, I became a trainer in data science to train students, train working professionals, and working professionals who are looking to transition into data science. So that is what it is. Data science is currently a very advanced field and a very advanced topic. Not only it is advanced, but it is a wide topic, a very wide topic. It doesn't uh, end with the predictive analytics, the analytics, or machine learning, deep learning. It is a very wide topic. After your machine learning starts your deep learning, then starts your reinforcement learning, general adversarial networks, and there are plethora of topics in data science. As there are as there are जैसे कि कई सारे जैसे कि कई सारे क्या कहते हैं आपके अपॉर्चुनिटीज है डेटा साइंस में. प्लीज म्यूट योरसेल्फ हूसोएवर स्पीकिंग इन द बैकग्राउंड. थैंक्स अ लॉट. પછી મેં એવું પૂછ્યું તો એમને મેં કીધું કંઈક આવું પ્રોબ્લેમ થશે તો મેં કીધું બહાર જવામાં તો એ કહે કે ના એ તો આપણું हेलो સિલેક્શન मयंक, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. थैंक यू. So there are plethora of opportunities in data science, and because the topic जो है वो बहुत ज़्यादा wide है. वैसा कि मैंने कहा, reinforcement, general adversarial networks, machine learning, deep learning, data analytics, तो उसी तरह opportunities भी बहुत ज़्यादा हैं. And to fulfill those opportunities, we train here at BIT students, working professionals, as I mentioned earlier. जैसे कि मैंने पहले mention किया, students और working professionals वो लोग क्या करते हैं, वो जो ट्रांजिशन करना चाहते हैं डेटा साइंस में. जैसे हमारे यहाँ एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, उन्होंने करीब 2 साल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जॉब की. अब वो डेटा साइंस में ट्रांजिशन होना चाहते हैं, नॉट ओनली बिकॉज इट इज ट्रेंडिंग, because it has a wide range of topics and it has a wide variety of opportunities as well. अभी सप्लाई गैप थोड़ा ज़्यादा है, कंपटीशन कम है, तो इट इज़ द राइट टाइम टू गेट योर सेल्फ ट्रेंड. इट इज़ द राइट टाइम टू गेट योर सेल्फ trained and followed by placed in one of the companies, be it startups or be it you in the starting. If you get an opportunity in a startup, join a startup as a data scientist. So this is what it is. So in this webinar, इस वेबिनार में मैं कवर करूंगा कई चीज़ें जो डेटा साइंस से रिलेटेड हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक प्रेजेंटेशन के तौर पर. और उसके अलावा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या डेटा साइंस कैसे ट्रेंडिंग हुआ, कहाँ से डेटा साइंस उठा, कहाँ से डेटा साइंस का एक वेव चला, डेटा साइंस वेव किधर से क्रिएट हुआ, और कैसे हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में, एक आर्टिकल में हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने डेटा साइंस को बोला डेटा साइंस इज वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स ऑफ द 21st सेंचुरी, और दे blatantly said that data science is one of the sexiest job of the 21st century. तो आइए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है before we proceed any further. Just tell me, is my screen visible? Just wait for a second. I'll be sharing my screen shortly. So here it is. So guys, is my screen visible? Yes, sir. Okay, great. Just give me 2 minutes before I. Sure. So this is a data science. Basically, a lot of people registered, but due to some time constraint, definitely some few have joined, a few have not been able to join.
But anyway, let's proceed further. This is our data science webinar. ये BIT का official data science webinar है that inspire students, to inspire working professionals, to inspire already data science students to know actually what data science is, data science क्या है, कहाँ से उभरा, और data science के use cases क्या हैं, data science और AI में क्या difference है, data science business analyst data scientist में क्या difference है, data engineer क्या होता है, क्या काम करता है. So let's begin with the basic, as I already start with the basics. So what is data science? Data science क्या है? तो बेसिकली बुक की जो लैंग्वेज होती है, आपकी बुकिश लैंग्वेज जो होती है, वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि इट इज द एक्सप्लोरिंग, प्री प्रोसेसिंग, मॉडलिंग ऑफ डेटा टू गिव यूजफुल एंड प्रोडक्टिव इंसाइट्स फॉर डिसीजन मेकिंग एज द बुकिश नॉलेज इज. बट इसको अगर थोड़ा सा एक्सपैंड किया जाए या थोड़ा और इसके डीप में जाया जाए तो ये है क्या? मत रिकॉर्ड करो, देखेंगे बाद में. प्लीज अरे समझ अनम्यूट योरसेल्फ, प्लीज. देख लिया हमने. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. पूरा कर दो 5-10 मिनट. थैंक यू. ऑलराइट. सो बेसिकली डेटा साइंस है क्या? बेसिकली डेटा साइंस है कि हमें एक डेटा सेट दिया गया. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ हूसोएवर इज स्पीकिंग. हां वही तो कह रहे हैं. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. नहीं है ना. Please unmute yourself whosoever is speaking in the background. Thank you. Just give me 1 minute. So let the slide start for a minute. Okay. So basically it is the exploring, pre-processing, or just give me 1 minute. I want to start the slide somehow. Yeah, thanks a lot. Thanks a lot for the patience. So basically अगर हम डेटा को, हमें डेटा लोड किया, हमें एक डेटा मिला, मान लीजिए बैंक से हमें डेटा मिला, हम मान लीजिए हम लोग की टीम है डेटा साइंटिस्ट की, हम लोग एक कंसल्टिंग कंपनी है, और बैंक ने मेरे को बोला कि मान लीजिए मेरे को पोटेंशियल कस्टमर्स चाहिए फॉर लोन्स, कि हम लोग को कुछ पोटेंशियल कस्टमर्स चाहिए जिन्हें हम आगे चल के टारगेट कर सकें. तो बैंक का जो डेटा मेरे को मिला उसे मैंने एक्सप्लोर किया, बट एक्सप्लोर करने से पहले मैंने क्या किया, डेटा सेट को अंडरस्टैंड किया, उस डेटा सेट को स्टडी किया, जो बैंकिंग मेरे टर्म्स हैं, जार्गन्स हैं, उनको स्टडी किया. उनको स्टडी करने के बाद व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड बेसिक एक्सप्लोरेशन ऑफ डेटा. अच्छा, बेसिक एक्सप्लोरेशन ऑफ डेटा की जब बात आती है तो लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि कौन से टूल्स जो हैं वो नेसेसरी हैं डेटा एक्सप्लोरेशन के लिए. बेसिकली आप डेटा अगर इन हैंड एक्सप्लोर करोगे, एक रजिस्टर, वो ज़माना गया 1970s या 80s का, जब हम रजिस्टर पे क्या करते थे, स्टैटिस्टिक्स, हमारा डेटा होता था, क्लरिकल लोग जो होते थे अपना रजिस्टर पे डेटा लिखते थे, बैंक का डेटा स्पेशली, और जो हमारे स्टैटिस्टिशियंस होते थे वो जनरली ISI इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता, वहाँ हमारा एक डेटा सेट जाया करता था. और क्या होता था कि स्टैटिस्टिशियंस और जो आपके मुंशी जी होते थे स्टैटिस्टिशियन से काफ़ी नीचे, वो बेसिकली जोड़ घटाने का 8वीं पास होते थे, कुछ 9वीं 10वीं पास होते थे, बट स्टिल वो जो काम करते थे, क्या उम्दा काम करते थे. वो जो काम करते थे वो जोड़ घटाने का, प्लस माइनस का करते थे. फिर हमारे स्टैटिस्टिशियंस आते थे, वो अपना स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगाते थे, लाइक बेसिक स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, या उसको जब बेसिक स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यानी कि मीन, मीडियन, मोड, उसके बाद जब वो एडवांस स्टैटिस्टिक्स की तरफ बढ़ते थे तो वो अपना हमारे जो एडवांस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती हैं, लिनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, नेव बेस्ड, तो वो कुछ फॉर्मूला बेस्ड होती हैं, मैथमेटिकल फंक्शन बेस्ड होती हैं, उस पर अपना डेटा प्रोसेस करते थे, प्री प्रोसेस करते थे, और फाइनली डेटा को क्या करते थे, ट्रेन करते थे, मॉडल करते थे. उसके पीछे आपके जो मैंने फॉर्मूलाज बोले, लिनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, नेव बेस्ड, ऐसे करते थे. अब हमने मान लीजिए हमें डेटा सेट मिला, हमने उस पर हमारा डेटा मॉडलिंग लगाया, और उसके थ्रू मुझे पोटेंशियल कस्टमर्स मिल गए जिनको मैं टारगेट कर सकता हूँ लोन देने के लिए. अब ये मेरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पूरी चेंज कर देता है. अगर 10 लोगों का डेटा सेट हो तो एक ह्यूमन भी आराम से कर लेगा, एक पढ़ा लिखा एक बच्चा भी, 8th स्टैंडर्ड का बच्चा भी बता लेगा कि हाँ ये हैं कुछ कस्टमर जिन्हें हम टारगेट कर सकते हैं. बट व्हाट अबाउट if I have a data set of 10,000 people? What if I
व्हाट इफ आई हैव अ डेटा सेट ऑफ 1 लाख पीपल, अगर मेरे पास डेटा सेट होगा 100 लोगों का भी, तो भी एक नॉर्मल स्टैटिस्टिशियन अगर लिख करके पेन पेपर पे करेगा तो उसको 1 घंटा 2 घंटा लगेगा. But we have tools like Python, we have tools like MS Excel. Again, MS Excel still is used in a lot of organizations, but the future is Python. Python is the most powerful tool and flexible tool that makes things easier. जो हम statistics लगाते हैं, जो हमें हमारे statistician 3-4 साल को 3-4 डेकेड पहले पेन पेपर पे लगाते थे, पाइथन हमें 4 सेकंड में करके देता है. सो डेटा साइंस पहले, जैसे कि दूसरे पॉइंट पे आते हैं, इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट यूजेस साइंटिफिक मेथड्स, algorithms, systems to extract knowledge from the data. So basically interdisciplinary field यानी कि पुराने ज़माने में, जैसे कि मैंने अभी अपने स्टूडेंट्स को, कुछ मेरे स्टूडेंट यहाँ भी हैं, मैंने उन लोगों को मशीन लर्निंग स्टूडेंट्स की बात करूंगा मैंने उन लोगों को लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ाया, या के नियरेस्ट नेबर जैसे कुछ मशीन लर्निंग टेक्निक्स पढ़ाई. तो उसमें मैंने एक बॉटनी का डेटा सेट लिया, फ्लावर डेटा सेट लिया. तो बेसिकली उनको यही समझाने के लिए कि ये सब एडवांस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स पहले बायोलॉजिकल साइंसेज में भी यूज हुआ करती थी, और आज भी उनको एक राह मिल गई है पाइथन की वजह से कि वो हमें आज भी बायोलॉजिकल साइंसेज में बहुत ज़्यादा यूज होने लगी है, और आने वाले फ्यूचर में भी यही फ्यूचर होगा आपका. बायोलॉजिकल साइंसेज में डेटा साइंस विल take over the medical field, or you can say artificial intelligence will take over the medical field. So basically data scientist का मैंने इतना महत्व दिया, मैंने डेटा साइंटिस्ट साइंस के बारे में जो आपको समझाया, बैंक डेटा के बारे में, बोटानिकल डेटा के बारे में, बायोलॉजिकल साइंसेस के बारे में. आप डेटा साइंटिस्ट बनोगे कैसे? सो मैंने बात की कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, ठीक. You need to have good skills in a programming language that is suitable for data science. Basically अभी हमारा जो Python, R और SAS जो है वो currently in trend है, but लेकिन एक वो बादशाहत की बात की जाती है, अगर किंग की बात की जाए तो Python is the king of all. और अगर वो आपको जानना हो तो बेसिकली, अगर मेरे पास थोड़ा टाइम बचा तो मैं डेफिनेटली आपको trends.google.com पे एक ट्रेंड दिखा दूंगा, ट्रेंड लाइन दिखा दूंगा कि पाइथन, हाउ पाइथन इज मोर पॉपुलर. इनफैक्ट मैं अभी अगर आपको दिखा दूं तो बहुत ही बेहतर रहेगा. लाइए थोड़ा ट्रेंड्स पे जाएं, अगर हम trends.google.com, ये बेसिकली trends.google.com बहुत ही इफेक्टिव टूल है. ये हमें हेल्प करता है बेसिकली क्या करने के लिए, हमें जो लोग सर्च करते हैं उसके बेसिस पे एक डेटा बनाता है, विजुअलाइजेशन डेटा बनाता है, और हमको एक बहुत बखूबी रिसर्च टूल तब्दील होकर के आता है. तो मैंने ये कंपैरिजन में डाला पाइथन आर, और मैंने ये यूएस का डेटा लिया. मैं चलिए यूएस का लास्ट 5 इयर्स का डेटा लेता हूँ. आइए स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन की रेस में आगे कौन है. देखिए पाइथन ऑफ कोर्स ट्रेंड्स हैं तो अपवर्ड रहेगा, कभी डाउनवर्ड रहेगा, कभी अपवर्ड भी रहेगा. ये ट्रेंड है, ये इसकी लाइन चलती ही रहनी चाहिए. बेसिकली ऐसे ही आपकी हार्ट की भी लाइन होती है, ये चलती रहनी चाहिए, फ्लैट नहीं होनी चाहिए. सो दिस इज व्हाट इट इज. सो बेसिकली पाइथन जो है, आप चेक करिए 5 साल पहले भी आर के बराबर, आर पाइथन के बराबर नहीं था. आप देख सकते हैं कि जस्ट 2 गुना से भी ज्यादा पाइथन, कितना ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं आज भी. और अगर आप इधर आए, मान लीजिए नवंबर 10 से लेकर नवंबर 2016 तक, 2019 में, सॉरी नवंबर 10 से नवंबर 16 तक 2019 ईयर में, तो आप देखिए कोई कंपैरिजन ही नहीं है पाइथन और आर का. व्हाई पीपल आर गोइंग स्विचिंग टुवर्ड्स पाइथन फॉर डेटा साइंस, बिकॉज कंपनीज लाइक गूगल, द फैंग, हम लोग इसे फैंग कहते हैं, हम लोग क्या बेसिकली everyone in the world calls it FANG. F for Facebook, A for Apple, A for Amazon, N for Netflix, G for Google, FANG. ये सब आपका पाइथन यूज करता है, एंड बिकॉज ऑफ विच पाइथन इज अ long term, basically a long term investment. If you are learning, you are making an investment in your long term career. Python is required for data science. अगर मैं SQL भी सर्च करूँ, SQL is a very powerful and a very old tool when it comes to programming. और मैं ये पास 5 का डेटा सेट कर रहा हूँ. हाँ SQL है बराबरी पे, बट अभी आप देख लीजिए, अगर चेक करें ट्रेंड्स, तो इट इज नोवेयर क्लोज टू पाइथन. मैं इंडिया का भी अगर ट्रेंड चेक करूँ, आइए इंडिया का ट्रेंड चेक करता हूँ. इंडिया का क्या ट्रेंड है? सो बेसिकली इंडिया का ट्रेंड चेक करते हैं. सो बेसिकली एसक्यूएल अभी भी, अगर आप करंट ट्रेंड जानिए, अगर करंट ट्रेंड जाने आप, तो अभी भी
Python is way above SQL, the current trend. They basically, this is the past trend. Past trend में हाँ SQL का बहुत usage था. SQL was 97, Python was 37. But if you look at the current trend again, Python is in a win-win situation. आइए एक इंडिया का डेटा, एक लास्ट डेटा प्रोग्रामिंग आर प्रोग्रामिंग में चेक कर लेते हैं. आर प्रोग्रामिंग में चेक कर लेते हैं. सो बेसिकली अगेन नो कंपैरिजन. जैसा कि मैंने कहा फ्लैट लाइन नहीं होनी चाहिए, लाइन हमेशा जो है हार्ट की तरह चलती रहनी चाहिए. सो दिस इज व्हाट इट इज. सो a basic comparison as to why Python is considered as the king of all. Python is a king and it is remained to be a king in the next 5 years. According to a WEF report, WEF basically आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि अभी जेनीवा में है करंटली, अब मतलब शुरू से जेनीवा में ही है. तो उसने भी लिस्ट आउट किया कि पाइथन, एसक्यूएल, एमएस एक्सेल, टैबलू, पावर बीआई ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव टूल्स रहेंगे और आने वाले जॉब्स जो होंगे, टॉप 3 जो जॉब्स होंगे, बेसिकली 97 मिलियन जॉब्स जो होंगे अराउंड द वर्ल्ड. तो वो बेसिकली 97 मिलियन यानी कि हमारा हो गया अराउंड 90,70,000 जॉब्स जो होंगे वो हमारे डेटा साइंस, एआई, एनालिटिक्स में होंगे. एज आई सेड अर्लियर, मैंने जो एग्जांपल्स दिए कि स्टैटिस्टिक्स बहुत नेसेसरी है और स्टैटिस्टिक्स इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड दे ऑल मेक टुगेदर अ साइंटिफिक entity, a large scientific entity that is science, that is statistics and mathematics. When you come to deep learning or even when you come to advanced machine learning, say for example we talk about decision trees, we talk about random forest. ये basically जो मैं algorithms के नाम लिए अभी आपको एलियन लग रहा होगा बट मैं बता दूं कि ये एडवांस मशीन लर्निंग के क्या है टेक्निक्स हैं टू अप्लाई एडवांस मशीन लर्निंग. तो बेसिकली उसमें आपका मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है. अच्छा, तो मैंने कहा बिजनेस अप्रोच. ओके, बिजनेस अप्रोच ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? मैंने एक डेटा, मैंने आपका थेरा बैंक का एक एग्जांपल दिया, मतलब मैंने आपका बैंक डेटा का एग्जांपल दिया जिसने आपको बताया कि एक डेटा साइंस कंसल्टेंसी को हायर किया उसने और डेटा साइंटिस्ट कंसल्टेंसी जिसमें कई सारे डेटा साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया कि बेसिकली वही लोन वाला हिसाब किताब कि मुझे टारगेट कस्टमर्स चाहिए अपने लोन के लिए पिच करने के लिए. तो बेसिकली you need a business approach. For that you need to study the data, understand the data, and then apply all the programming, statistical and mathematical techniques. Because data science का, data scientist का जो काम होता है वो task oriented नहीं होता है. बेसिकली क्यों टास्क ओरिएंटेड नहीं होता? आप कोई वेबसाइट या कोई ऐप नहीं डिजाइन कर रहे हो, आप एक एनालाइज कर रहे हो डेटा आप, ताकि आपका बिजनेस इंपैक्ट करे, आपका बिजनेस का एक वैल्यू प्रोपोजिशन हो. सो दिस इज हाउ combination of these, you master all these four techniques, excuse me, you master all these 4 techniques and you become a data scientist, and of course followed by sheer hard work and practice as well. Importance of data science, as I said earlier, bringing value proposition and impact on a business in a positive scale, helping monitor customer trends that help the company to get better insight. मैंने आपको Google Trends का डेटा दिखाया, मैंने बताया कि पाइथन और आर में यूएस में लास्ट 5 इयर्स के डेटा में क्या ट्रेंड्स हैं. उससे हमें मिल गया, एक राह मिल गई कि हाँ भाई पाइथन क्यों प्रिफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. पीपल आर सर्चिंग, व्हाई दे आर सर्चिंग? They want to know about Python. They want to learn about Python. So this is what Trends Data Science helps us. मुझे एक ऑब्जेक्टिव मिला उस Google Trends से, उस डेटा विजुअलाइजेशन से. So this is how helpful data science. अभी आपने लाइव उदाहरण देख लिया डेटा साइंस के प्रोजेक्ट का. सो आइए इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा साइंस को कंटिन्यू करते हैं. वही जो चीज़ें मैंने पहले कही उन्हीं सब चीज़ों को दोबारा से इसने इस स्लाइड में एक्सप्लेन हो रहा है. बेसिकली एम्पावरिंग मैनेजमेंट टू मेक बेटर डिसीजंस. अगर मैं लोन का पोटेंशियल कस्टमर्स उन्हें बता दूंगा तो उनके कस्टमर्स जो लोन के होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे. बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट वापस आएगा. नाउ दिस इज अ बिजनेस अप्रोच, थिंकिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ बैंक. बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा लोन आएगा, इंटरेस्ट के तौर पे पैसा वापस बैंक के पास आएगा, और फॉलोड बाय ऑफ कोर्स आपका जो लोन है, लोन के साथ इंटरेस्ट, बैंक के पास पैसा वापस आएगा. मैनेजमेंट को बेटर डिसीजंस देगा, बैंक के पास पैसा आएगा. आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, इट विल आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, और पैसा खर्च करेगा, ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करेगा. मैंने आपको ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करके दिए कुछ 10,000 या 1 लाख के डेटा सेट से, बैंक के, अगेन बैंक के पोटेंशियल कस्टमर से. स्टाफ की एफिशिएंसी इंक्रीज हुई कोर टास्क और इश्यूज हैंडल करने के लिए. मान लीजिए एक आइसक्रीम सेल
आइसक्रीम का पार्लर है, मेरा एक आइसक्रीम का पार्लर है, मैंने एक डेटा साइंटिस्ट को ऑफर दिया कि भाई पैंडेमिक की वजह से मेरी क्या हो गई है, सेल डाउन हो गई है, लोग आइसक्रीम खा नहीं रहे हैं। उसने मेरे को, मैंने बोला कि ठीक है, ओके, आप मेरे को क्या करिए, अपना पास्ट डेटा जो है, जितना भी आपका डेटा है, आपकी आइसक्रीम स्टोर मान लीजिए 2019 से खुली है, 2019 से लेकर जनवरी से लेकर 2020 दिसंबर तक का या 2021 जनवरी तक का आप डेटा दे दीजिए। I'll apply some data modeling technique like linear regression से for example, उसके थ्रू मैं ट्रेंड्स जानूंगा, क्या ट्रेंड जानूंगा कि उस पास डेटा के बेसिस पे मैं ट्रेंड जानूंगा। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, लेट्स रिज्यूम। उसके पास डेटा पे मैं क्या जानूंगा, मैं लिनियर रिग्रेशन टेक्निक लगाऊंगा, उसके पास डेटा से मैं फ्यूचर के ट्रेंड्स जान जाऊंगा, उसकी फ्यूचर की सेल जान जाऊंगा। तो व्हाट विल हैपन, अगर उसकी सेल बढ़ रही है तो वो क्या करेगा, अपना रॉ इन्वेंट्री, अगेन अ बिजनेस अप्रोच, वो अपनी रॉ मटेरियल्स, अपना जो इन्वेंट्री है वो क्या करेगा, वो इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज करेगा क्यों, क्योंकि उसकी सेल बढ़ने वाली है, वो सेल बढ़ने वाली है, वो अपना रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इंक्रीज करेगा। And followed by, if he knows beforehand that what is going to happen, what is the trend is, what the current trend is, or what the future trend is, he will be able to, of course, increase his staff as well. A very basic example of how to increase the efficiency and commitment of handling staff, and of course the core task, that is the your, अगर आपका इन्वेंट्री रहेगा, रॉ मटेरियल्स रहेगा, सेल रहेगी, तो फिर आप उसी सेल से अपना रॉ मटेरियल और इन्वेंट्री बना पाओगे। Identify and act upon opportunities, promote low-risk data-driven action plans, validate decisions निकालिए, helps in selecting target audience, again the bank one, facilitates sensible recruitment of talent। मेरे पास एक डेटा साइंस का एक डेटा टेबल, मान लीजिए डेटा फ्रेम आया, डेटा सेट आया, उस पर मेरे कुछ एम्प्लॉई के नेम्स हैं, with again statistical technique, advanced statistical technique or a machine learning approach, I will be able to identify बेसिकली अभी डेलॉयट में क्या हो रहा है कि बेसिकली आपका जो रिज्यूम आता है, डेलॉयट जैसी कंपनीज में, BWC में, उसमें आपका जो रिज्यूमे आता है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, एक डेटा सेट में एक्सट्रैक्ट हो जाता है जितने भी लोगों के रिज्यूम आए, और मशीन लर्निंग ही क्या करता है उन लोगों को, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही क्या करता है, जो रिज्यूम्स नॉट क्वालिफाइड है, फॉर एग्जाम्पल दे वॉन्ट अ पोस्ट ग्रेजुएट गाय एंड द गाय इज अ ग्रेजुएट हु हैज सबमिटेड इट CV, उसकी CV ऑटोमेटिकली रीड करके रिजेक्ट हो जाएगी। Again, a very helpful approach. तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अपॉर्चुनिटी अगर बहुत ही वाइड टॉपिक है, एडवेंट टॉपिक है, एडवांस टॉपिक है, डाइवर्स टॉपिक है, तो अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ही ज़्यादा है। इफ़ यू लर्न डेटा साइंस, इफ़ यू नॉट मास्टर, but if you learn data science, keep on practicing yourself. Basically, we are not here to master, we are here to learn and learn only. We are here to learn. So if you are able to master a technique, then well, you will be able to definitely become a data scientist, data analyst, data visualization engineer, machine learning engineer, and so on. The top 10 required skills, as I'm saying it for the past say 30 minutes, that probability, statistics, advanced mathematics, calculus, Python programming, managing the database, SQL, Tableau, Power BI. Basically ये जो है आपके, ये सब आपके Tableau, Power BI, Python के tools हैं, basically that we use to visualize, extract, read the images from the data set. ये है मेरे कुछ, अगर मेरे को डेटा साइंस लगाना है तो ऑफ कोर्स पाइथन के साथ तो मेरा जो टूल होगा वो क्या होगा। सो ये मेरे कुछ टूल्स हैं, जुपिटर नोटबुक्स और गूगल कोलैब और क्रेसल। तो बेसिकली जुपिटर नोटबुक्स हम क्या कर सकते हैं, हम उसको विंडोज़ में, अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में या मैक OS X में, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्पल के कंप्यूटर्स के लिए, उसमें डाउनलोड करके रन कर सकते हैं। ये जो दो हमारे प्लेटफॉर्म हैं, ये हमारे क्लाउड इनेबल्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, ये हमारे ब्राउज़र पे ही चलते हैं, और डायरेक्ट यू नीड अ प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन फॉर दीज। एंड एडेड बेनिफिट क्या होता है इसमें, एडेड बेनिफिट दोनों में ये है कि इसमें क्लाउड GPU होता है, क्लाउड ग्राफिकल प्रोसेसर यूनिट होता है। सो उसके थ्रू अगर आप कोई इमेज रीडिंग का, कोई मान लीजिए इमेज आप रीड कर रहे हो, वीडियो इमेज एनालिटिक्स लगा रहे हो, वीडियो एनालिटिक्स लगा रहे हो, सो यू नीड ग्राफिक्स कार्ड, द ग्राफिक्स प्रोसेसर फॉर दैट।
जो ग्राफिक्स प्रोसेसर उसका आता है वो बहुत कॉस्टली होता है, सो नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड इट। सो बेसिकली क्या होता है कि हाँ, ये जो आपका गूगल कोलैब है इनबिल्ट ग्राफिक्स प्रोसेसर यूनिट देता है आपको, जिसके थ्रू आप अपना डीप लर्निंग के प्रोजेक्ट्स चला सकते हैं। So AI, ML, DL, basically AI is the king of all. Machine learning and deep learning, they are the subset of artificial intelligence. Basically through all जो हम machine learning लगाते हैं, जो हम deep learning लगाते हैं, to basically complex challenges, जैसा कि इसमें साफ साफ मैंने mention किया, complex challenges है like image analytics, audio analytics, video analytics, classification. अभी हम आगे चल के थोड़ा next slide में थोड़ा और case studies discuss करेंगे और these AI ML part. Basically the ये parent is AI ML DL and together this makes data science. Artificial intelligence is nothing without data. आप जो फोन से अपने फोन से सोशल मीडिया के थ्रू डिफरेंट एप्स के थ्रू, गेमिंग एप्स हो गई आपकी, एटसेट्रा कई एप्स हो गई आपकी, कैमरा कुछ ऐप हो गई, स्नैपचैट जैसी ऐप हो गई कोई आपकी, आपकी सोशल मीडिया एप्स हो गई, उससे जो आप डेटा एक्सट्रैक्ट करो उसी से एआई ट्रेन हो रहा है। और ये इंस्पायर्ड है ह्यूमन न्यूरॉन से। ह्यूमन के ब्रेन में जो छोटी सी नस होती है, न्यूरॉन जिसे कहा जाता है, उसी से इंस्पायर्ड होकर के आपका एआई बना रखा है। जैसे कि इसने कहा है, मशीन इज एबल टू मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस टू बाय हैविंग द एबिलिटी टू प्रिडिक्ट, क्लासिफाई, लर्न, प्लान, रीजन एंड परसीव। So this is what the flow chart of AI looks like. Artificial intelligence, machine learning, expert systems, speech recognition, planning, robotics, computer vision. AI workflow क्या होता है? Get data. Basically क्या get data, कहाँ से हमें data मिलता है? Data as I said, हम लोग हर समय, मैं जो ये बोल रहा हूँ ऑडियो, मैं ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मेरा वीडियो जो आ रहा है सबके सामने, ये सब जूम के पास डेटा जा रहा है और मैं इसको एक ब्राउजर में, बैकएंड में एक ब्राउजर में रन कर रहा हूँ, गूगल क्रोम ब्राउजर पे। वो डेटा गूगल के पास जा रहा है, उन्हें डेटा मिल रहा है, वो डेटा को प्रिपेयर कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं और मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, डेटा को टेस्ट कर रहे हैं टू इम्प्रूव देयर टू इम्प्रूव आवर यूजर एक्सपीरियंस, टू इम्प्रूव आवर यूजर एक्सपीरियंस एंड फॉर देम टू generate millions and billions of dollars. That is what it is in the end. So let's talk about use cases of data science. Before I talk about use cases of data science, just give me 1 minute. I want to increase the meeting time. Just give me 1 minute. Thank you. हेलो एवरीवन। मीटिंग जो है 5 मिनट में एंड होने वाली है, तो जब मीटिंग एंड हो जाए तो आप लोग क्या करिएगा, उसी सेम लिंक से दोबारा रीजॉइन कर लीजिएगा और रीजॉइन कर लीजिएगा एंड वील प्रोसीड विद द मीटिंग फर्दर, राइट। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द यूज केसेस ऑफ डेटा साइंस। तो बेसिकली डेटा साइंस की तो बात बहुत हो गई, बट आइए बात करते हैं डेटा साइंस यूज कहाँ पे हो रहा है, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है बेसिकली। ओके, ऑल राइट। तो डेटा साइंस यूज कहाँ कहाँ हो रहा है। हमारा एक वेरी पॉपुलर नेटफ्लिक्स रिकमेंडर सिस्टम्स, और नेटफ्लिक्स ये यूज करता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। नेटफ्लिक्स आप सबने चलाया होगा, सबने कंटेंट, बहुत सारा कंटेंट देखा होगा नेटफ्लिक्स में। बट ये नेटफ्लिक्स जो है, हाउ इट बेसिकली कीप्स यू ग्लूड ऑन टू, बेसिकली कीप्स यू, मतलब आपको हर बार जो है बेसिकली क्या करता है, रिचार्ज करवाता रहता है। ये मतलब रिचार्ज विद अ सर्टेन, बिकॉज दे हैव अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। क्यों आप कंपेल हो जाते हो कि हाँ एक नया कंटेंट आया, फॉर एग्जांपल द वाइट टाइगर, फॉर एग्जांपल से लूडो, ऐसे करके कुछ नया कंटेंट आया है, एंड बेस्ड ऑन दैट पीपल, इफ दे डोंट नो हाउ टू ऑफ कोर्स डाउनलोड पायरेटेड कंटेंट, so based on that they go and basically recharge their Netflix account and they watch, enjoy. This helps Netflix generate another billions and millions of dollars, zillions of dollars, and basically AI helps it. So basically recommender systems क्या होता है, basically ये दे रहा है मेरे को कि रिसेंटली एडेड, बेसिकली ये रिसेंटली एडेड कंटेंट है डेटाबेस में, और ये मेरे को दे रहा है बिकॉज यू एडेड टू किल अ मॉकिंग बर्ड टू योर लिस्ट। अब जो टू किल अ मॉकिंग बर्ड आपने अपनी लिस्ट में देखी, या आपने टू किल अ मॉकिंग बर्ड नाम की मूवी जो है आपने
देखी, व्यू करा कंटेंट उसका, तो बेस्ड ऑन दैट, उसी के जॉनर के पे बेस्ड कुछ ये मूवीज मेरे को रेकमेंड करने लगता है। ठीक, अब मान लीजिए थोड़ा हट के एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपने कोई बायोपिक मूवी देखी, मान लीजिए आपने कोई बायोपिक मूवी देखी संजू। संजू अ बायोपिक ऑफ संजय दत्त स्टारिंग रणबीर कपूर, आपने बायोपिक देखी संजू। सो नेक्स्ट क्या करेगा, जब आप लॉग इन करोगे आफ्टर वॉचिंग संजू, से यू लॉग इन द वेरी नेक्स्ट डे टू वॉच अ डिफरेंट कंटेंट ऑन नेटफ्लिक्स। सो ये क्या करेगा आपको, बिकॉज यू वॉच्ड संजू, हेयर इज अ टू योर लिस्ट, सो इट विल गिव यू अ कंप्लीट। आपने बायोपिक देखी तो बायोपिक जॉनर की दूसरी मूवीज दिखाने लगेगा। एम एस धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी, आपका वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, आपका भाग मिल्खा भाग एंड एटसेट्रा बायोपिक जॉनर की मूवीज दिखाने लगा। और फिर आप नीचे और जाओगे, कोई और मूवी आपने देखी, से आपने देखा कोई सीरीज देखा, आपने सेक्रेट गेम्स देखा, तो बेस्ड ऑन सेक्रेट गेम्स गैंगस्टर टाइप आपका मूवीज जो है रेकमेंड करने लगेगा। सो बेसिकली ये हुआ क्या था, ये सन 2000 में नेटफ्लिक्स वाज मेनली अ डीवीडी सेलर, डीवीडी सेलर एंड डीवीडी रेंटर। बेसिकली वो करते क्या थे, ऑल ओवर यूएसए डीवीडी सेल करते थे, डीवीडी रेंट करते थे। और उसके बेसिस पे उन्होंने इन द ईयर 2000 उन्होंने क्या किया, एक रिकमेंडर सिस्टम स्टार्ट किया। एंड कुछ कॉलेज के रिसर्च स्टूडेंट्स थे यूएस के, उन्होंने बोला कि इफ समवन मेक्स अ रिकमेंडर सिस्टम दे विल गिफ्ट देम $10,000 इन बैक इन द ईयर 2000। So when Netflix, so based on that, when Netflix was a DVD seller or a DVD, they used to rent DVDs all over the US. तो उन्होंने क्या किया, उन स्टूडेंट्स ने रिकमेंडर सिस्टम बनाया। तो वो क्या करता था कि बेसिकली लोगों का बेस्ड ऑन देयर पास्ट परचेजेस, डीवीडी परचेजेस और डीवीडी रेंट्स, इट recommended recommended in a list, it recommended certain different movies that is present in the Netflix database. So this is how Netflix रिकमेंडर सिस्टम्स केम इनटू व्यू। फिर 2010 में जब वो लोग ऑनलाइन गए, एंड टुडे नेटफ्लिक्स इज कम्स इन द फैंग, भाई फेसबुक, एप्पल, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, गूगल फैंग के अंडर में आता है। तो बेसिकली अब बिकॉज ऑफ रिकमेंडर सिस्टम एंड इनोवेटिव थिंग, नेटफ्लिक्स वाज in the is now in the top notch. Basically meeting is about to end, do join it with the previous link. I'll be right back, don't go anywhere, stay here with us.